कहाँ जा रहे हो? मेरे को भेज दी उसकी डिटेल्स जो हमारी बात हुई थी, फोटोज भेज दो। यूजफुल। ओके। Okay, so hello everybody, good afternoon and welcome to the live Hindu class of the EduphoreIAS. So today as usual we'll be starting first with today's questions and then we'll be coming to this today's Hindu newspaper itself. ठीक है, उससे पहले हम कल के questions देख लेते हैं quickly and then start our discussion. The Hindu आज की, ठीक है. So इससे पहले quickly try to answer it. कल हमने डिस्कस किया था रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है. So it is Asia's highest honor and is considered Asia's version of the Nobel Prize. Indeed, this is a correct statement. Second is the award is named after the third president of the Republic of Indonesia, Ramon del Ferro Magsaysay. Indeed, third president, but not of Republic of Indonesia, but of Philippines. ठीक है. So that's why this statement is incorrect. The second is incorrect. Assam-based oncologist, those who are specialized in the treatment of cancer, actually, they are oncologists. Ravi Kannan is the winner of 2023 Raman Magsaysay Award. This is very much correct. So first is correct, third is correct, therefore only two pairs are correct here. Fine. Next question is, a progressive UCC should not overemphasize biological ties only. It must protect the rights of adoptive parents as well. So critically examine same following the same structure of answer writing, that is intro, body and conclusion. Yesterday we discussed this lead article on editorial page of the Hindu written by Faizan Mustafa, one of the leading constitutional experts in India. Fine. So therefore in that article the author actually talked about not just using the some of the cases of the Bombay High Court's judgment, that somewhat in case of, let us say, especially the whole issue he discussed in respect of UCC, Uniform Civil Code. And in this article was different in the sense that his focus was on protecting the child's best interest. Okay, sometimes what happens, let us say parents actually get separated, fine, then who this custody of child comes under the question, that who will get the custody of the child, either the mother or the father. Fine. Then another case was that when another case is biological parents versus the adoptive parents. Fine. So in by giving certain examples related to the cases where he mentioned about the judgments of the Bombay High Court, where the court actually ruled in favor of biological father, but the father was actually accused of rape as well. I mean, the child that was born out of that, so actually the mother was minor somewhat, and therefore, he was alleged with the this father was alleged with the rape case, fine, and the child born there out of that incident, or you can say, so therefore such kind of relations. So of course, later on what happened, the child was actually left out, or let us say the child somewhat surrendered to the CWC, that is Child Welfare Committee, and the Child Welfare Committee therefore further gave this child to some adoptive parents, those who were interested in adoption of the child. But later on Bombay High Court overruled this and said no, the child belongs to the biological father. Okay, but do not forget that the father was accused of rape only. Fine. So this is how. So introductory in introduction you can say that yes, this is the time when the government of course may bring in Uniform Civil Code, because the government has called up on this special session of parliament, fine, from September 18 to 22. So therefore somewhat the this perception is that government may, or anticipation is that government may bring this Uniform Civil Code in this special session. So therefore it is important that even if government is bringing such kind of this, let us say, Uniform Civil Code in this upcoming session, so
in such kind of UCC, the focus of the government should be must be on rather protecting the child or taking care of the interest of the child. ठीक है, so therefore this is how you can actually start your intro. And then child custody and the biological links, find this is a paragraph actually we discussed in detail. So this is how your body part should be of the answer, like mentioning child custody issues that we discussed. Either child should belong to a biological father or an adoptive parents, or a child should belong to a father or mother, let us say. तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि समवॉट जो मदर की कंसेंट थी उसमें नहीं ली गई कोर्ट के द्वारा, तो हमने ये देखा कि अल्टीमेटली मदर की जो बात थी या मदर की जो मतलब कोर्ट ने सुना ही नहीं मदर को, ठीक है. दिस वाज काइंड ऑफ ऑन साइडेड जजमेंट. उसके बाद केस ऑफ अडॉप्शन की भी इन्होंने बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल नसरीन बेगम 2022 केस एक इन्होंने डिस्कस किया था. फर्दर इफ्तिकार रिलेटेड एक फिर 2021 का केस इन्होंने डिस्कस किया था कि उसमें कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओवररूल कर दी थी जजमेंट को. एंड ऑफ कोर्स समवॉट फैमिली कोर्ट ने जो रूलिंग थी जो फैमिली कोर्ट के, दैट वाज समवॉट लॉजिकल वन और रैशनल वन, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको भी ओवररूल कर दिया था. So this is what all these things need to be mentioned in the body part of the answer. And finally we could the conclusion. So conclusion I said should be on the in the affirmative tone. So affirmative tone kaise hogi? So progressive UCC should not overemphasize biological ties. This is what you can conclude. It must also protect the rights of adoptive parents, otherwise people would not adopt children, isn't it? उसमें हमने देखा भी था कि सपोज एक पेरेंट ने 3 months और 6 months के बच्चे को अडॉप्ट किया, 6 years तक उसकी देखभाल की, एंड उसके बाद फिर वो बच्चा वापस बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास चला गया. सो ऑफ कोर्स व्हाट अबाउट द अडॉप्टिव पेरेंट्स? सो समवॉट दिस practice of ruling like this might discourage the people who is coming forward for such kind of adoption, right? So this is what the author actually tried to mention these things. So therefore it should not insist on matrimonial bond between parents and should ideally make provision of guardianships even for a single parent, surrogate parent and queer parents. ठीक है, the third gender, I mean those who are neither male nor female, so queer parents. Fine. So all of these must be taken care of. That's it about yesterday's questions. Now let us start with the today's Hindu itself. So first front page. इंडिया ब्लॉक रिजॉल्व्स टू होल्ड सीट शेयरिंग टॉक्स. ऑपोजिशन की जो सारी पार्टीज इकट्ठे आके 24 की जो अपकमिंग इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, उसको साथ में मिलकर फाइट करने की बात कर रहे हैं. तो इससे रिलेटेड कल इनकी मुंबई में एक महाराष्ट्र में मीटिंग हुई है, एंड उसमें इन्होंने स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक में काम करते हुए सीट शेयरिंग की बात की है. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अवेयरनेस आपको होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने पैनल, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एक पैनल बनाया है टू स्टडी साइमल्टेनियस पोल्स टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. पहले भी इंडिया में साथ में दोनों इलेक्शंस होती रही है, बट तब तक जब तक कि वन पार्टी रूल था. ठीक है, पोस्ट 1989 व्हेन वन पार्टी रूल एक्चुअली खत्म हुई. ठीक है, उसके बाद हमने मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में देखना स्टार्ट किया. पार्टीज तो पहले से भी थी, बट ऑफकोर्स रूलिंग जो थी वो मेजरली एक पार्टी की डोमिनेंस थी अक्रॉस इंडिया, बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो जब सिंगल पार्टी की सरकार हो स्टेट्स में भी एंड सेंटर पे भी, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती. ठीक है, बट जब अपोजिशन की सरकार हो, गवर्नमेंट हो, तो दिक्कत आती है. बिकॉज जो साइमल्टेनियस पोल्स हैं उसको भी कंडक्ट कराने में कुछ चैलेंजेस हैं. उसकी स्टडी करने के लिए एक पैनल बनाई गई है, एंड इस पैनल को हेड जो कर रहे हैं वो हैं अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी. ठीक है, दिस पैनल वुड लुक इनटू द फिजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू स्टेट असेंबलीज एंड द लोकसभा. ठीक है, बस इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत है. उसके बाद गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट. यू कैन सी फ्रेश फ्रिक्शन इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार. ठीक है, सो यहाँ के गवर्नर्स जो हैं, एंड द होल इशू इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज, वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज. बिकॉज चांसलर जो है यूनिवर्सिटीज के, स्टेट के स्पेशली, वो कौन होते हैं? मोर और लेस गवर्नर आपके, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर, नॉट एक्सक्लूसिवली बट ऑफ कोर्स इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. सो दिस इज एक्चुअली convention kind of.
तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट ने, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल की सरकार है, उसने एक रेजोल्यूशन पास करके ये कहा था कि अब जो भी अपॉइंटमेंट वीसीस की होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी, ना कि गवर्नर करेंगे। बट गवर्नर ऑफिस ने कल ये कहा है कि नहीं, जो भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सिर्फ मान्य जो होगी, जो लीगल होगी, वो गवर्नर ऑफिस के द्वारा अपॉइंटिंग जो वीसीस होंगे वही रियल में वीसी होंगे। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, इश्यूज तो अराइज होने ही थे, तो इस तरह की कुछ सिमिलर इश्यूज चल रही हैं दोनों ही जगह पे। ठीक है, नाउ दिस इज अ सिटी पेज फ्रॉम दिस दिल्ली। तो यहाँ पे जो भी दिल्ली से ज्वाइन करेंगे वो देख सकते हैं इसको, अदरवाइज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अवेयरनेस होनी चाहिए हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ के बारे में। ओके, नाउ दिस अगेन सिटी पेज ओनली। तो यहाँ पे भी पॉलिटिक्स ही चल रही है, G20 की तैयारियां चल रही है। गांधी दर्शन गेट्स अ फेसलिफ्ट, प्रेसिडेंट टू अनवील स्टैच्यू ऑन September 4। ठीक है, सेल्फी पॉइंट भी क्रिएट की गई है सेल्फी लवर्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ पे, ऑफ कोर्स जहाँ पे गांधी जी हैं, राजघाट, ऑफ कोर्स नियर राजघाट ऑन। ठीक है, इसलिए किया जा रहा है ये to mark the 75th year of our independence, to celebrate the 75 years of India's independence and its G20 presidency. Gandhi Smriti and Darshan Smriti vice chairperson said by this. So Gandhi Smriti and Gandhi Darshan, तो डिफरेंट, आई मीन जो ये है यहाँ पे गांधी जी की स्टैच्यू जो है वो लगाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम स्टेट्स, so politics only. Okay, so finally again states page। यहाँ पे आज India's first solar observatory mission to be launched today and the timing was 11:50 already launched, and उसके बाद जो एक crucial time है that is 12:53 means in next 50 minutes when this will be reaching to its spacecraft will be into highly eccentric earthbound orbit at around 12:53 p.m. Today, just in next 50 minutes. So this is a crucial mission because this is the first mission that India is somewhat sending to the sun. So India's first solar observatory mission to be launched today, already launched. So mission payloads help to understand the problem of coronal heating. Now पर्पस क्या है इसका? सो कोरोनल हीटिंग, कोरोना क्या होता है? कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। ठीक है, जो कि वो पार्ट नहीं जो हमें क्लियरली विजिबल होता है, बट साइड्स में जो, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, दैट्स अ लेयर एक्चुअली इज विजिबल स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिस टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो कोरोनल हीटिंग का पता लगाने का यहाँ पे इशू ये है कि जो सरफेस पे टेम्परेचर है सन के, दैट इज समवॉट अराउंड 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट अगर हम कोरोना के लेवल पे बात करें, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो इतना है, बट अगर हम जो ग्लोइंग पार्ट देखते हैं हम, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो समवॉट टेम्परेचर इज समवॉट 200 to almost 500 times more than this surface temperature। ठीक है, तो इसी की पता लगाने, स्टडी करने के लिए हम भेज रहे हैं मिशन की। अभी तक ये नहीं पता लगा कि ये डिफरेंस क्या है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू रीजन्स। एंड टेम्परेचर इतना ज्यादा डिफरेंस है कि 200 to 500 टाइम्स के डिफरेंस है। ठीक है, 10,000 डिग्री तो ऑलरेडी फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट इज कोरोनल मास इजेक्शन। तो कोरोनल मास इजेक्शन, CME जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, व्हाट इज इट? तो कोरोनल मास इजेक्शन इज बेसिकली, सन इज द मोस्ट दिस यू कैन से द मोस्ट एक्टिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जब भी सन से क्या है कि ऑलवेज इट एमिट सम और इजेक्ट सम, फॉर एग्जांपल गैसेस एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो जो ये इजेक्शन होती है सन के थ्रू, वी कॉल इट कोरोनल मास इजेक्शन, बेसिकली कोरोना से। ठीक है, and mass is actually a vast amount of
ठीक है, ये जो इजेक्शन है वो होती है, इरप्शंस होती हैं, ठीक है, गैस एंड प्लाज्मा की, इसलिए हम इसको कोरोनल मास इजेक्शन बोल देते हैं। लेकिन आज तक ये रीजन नहीं पता लग पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, होने के पीछे का कारण क्या है, तो इसका भी पता लगाने का मिशन का जो इस आदित्य 11 का काम है। देन फ्लेयर एक्टिविटीज, सोलर फ्लेयर्स और विंड फ्लेयर्स यू कैन से, एंड द डायनेमिक्स ऑफ स्पेस वेदर एंड द प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। तो इन सब चीजों की जो मेन एजेंडा है जो मिशन का, वो डिफरेंट पेलोड्स हैं, 7 पेलोड्स हैं, जैसा कि हमने बात भी कर लिया पहले ही पिछली क्लासेस में, 2-3 दिनों से हम इसको ट्रैक भी कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली 7 पेलोड्स आर देयर फॉर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, फाइन, different for different purposes. So we'll be keeping tab on this. जो 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 व्हीकल यूज हुआ है इसके लिए, रॉकेट जो लॉन्च हुआ है, रिमेंबर दिस इज PSLV C57 फॉर आदित्य L1, ठीक है, तो इट्स PSLV एंड नॉट द GSLV, रिमेंबर C57। L1 क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1, ये सब हम काफी टाइम बात कर चुके हैं, सो लेट अस नॉट गोइंग टू दैट। But yes, one important thing is that European agency ESA, that is European Space Agency, is going to support our Aditya L1 mission launch as well, and the way they had somewhat supported the Chandrayaan 3 mission as well. Okay, even NASA was there in Chandrayaan 3 as well, somewhat providing crucial information and all. But here you have only ESA, not the NASA as such. So therefore, ESA provides support from its 35-meter deep space antennas over Australia, Spain, and Argentina. Okay, so from different locations, it will provide us the required or crucial information for the success of this mission. Okay. 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 फाइनली एडिटोरियल पेज से आज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज चाइनीज इकोनॉमी रिलेटेड, व्हाई द चाइनीज इकोनॉमी इज एक्चुअली स्लोइंग डाउन एंड व्हाट कुड बी इट्स रिपल इफेक्ट, फाइन, दिस इज अबाउट द चाइनीज इकोनॉमी। अब सब लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो रेगुलर, तो कि चाइनीज इकोनॉमी जो है समवट स्लो हो गई है काफ़ी, एंड ऑफ कोर्स अभी भी स्लो डाउन है, फिर भी 5% के रेट से अराउंड ग्रो कर रही है, दैट्स नॉट टू स्लो, बट ऑफ कोर्स जो एक इकोनॉमिक बूम था चाइना में, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो क्विकली चाइनीज इकोनॉमिक स्लोइंग डाउन, ऑथर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी है, चाइनीज के जो ऑफ कोर्स चाइनीज इकोनॉमिक स्लो डाउन, फेसिंग स्लो डाउन has caused mixed reactions across the world. China for long had been worried about fears of slowdown and a middle income trap. Now middle income trap क्या होता है? So trap is something where you just get trapped and unable to come out of it. ठीक है? So मिडिल इनकम ट्रैप, यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी जो है डिस्टिंक्शन होती है, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम। तो जो ट्रांजिशन है चाइना की आफ्टर सो मच ऑफ ग्रोथ, एक्चुअली कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, कि मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्री बनने की, ये चाइना नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एंड अब ग्रोथ स्लो डाउन भी होती जा रही है। तो समवॉट अब ये काफी डिफिकल्ट हो गया कि चाइनीज जो इकोनॉमी है वो मिडिल इनकम से निकल के हाई इनकम में ट्रांजिशन करे, कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स लाइक डिफ्लेशनरी सिचुएशन एंड द स्लोइंग डाउन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, ठीक है। नाउ सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन ट्रैप्ड इन दिस ओनली। There are fears of deflation as well. Deflation is reverse of inflation, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिल रहा है आपको, चाइना में डिफ्लेशन। एक दिन इससे पहले भी एक दिन हमने डिटेल में बात की है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे आया हुआ था, व्हाई वी आर somewhat experiencing deflation in China and inflation across the world, especially in the major economies including India. So in that article we discussed in detail what are the different what could be the different reasons behind this deflation in China. That is general प्राइस नहीं, फॉल इन प्राइसिंग, ये चीजें सस्ती हो रही हैं। तो देयर आर फियर्स ऑफ डिफ्लेशन व्हिच में ब्रिंग बैड न्यूज फॉर चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज चाइना जो है उसकी इकोनॉमी काफी इंटीग्रेटेड है वर्ल्ड से, प्लस चाइना काफी एक वर्ल्ड की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उस पर एक बड़ा शेयर चाइना का है, ठीक है। Thus understanding the causes and the magnitude of present day economic challenges of China becomes essential. तो सबसे पहले बैकग्राउंड ये है कि
2007 में the then premier, that is premier is like a prime minister of China actually, for the prime minister for China, so we call them premier. So in 2007 the then premier Wen Jiabo had cautioned that the biggest problem with China's economy is that the growth is unstable, unbalanced, uncoordinated and unsustainable. See, कि चाइनीज प्रीमियर ने 2007 में ये बातें कही है, सब कुछ सारी ही नेगेटिव, कि आप जो चाइना की ग्रोथ है समवॉट अनस्टेबल है, अनबैलेंस्ड है, अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनसस्टेनेबल भी है, ठीक है। एंड यही चीजें आज हमारे को देखने को मिल रही है इन वन और द अदर फॉर्म, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि दैट सम फॉर्म ऑफ कोर्स करेक्शन वुड बी अंडरटेकन इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर की किसी भी कंट्री की अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेक्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइन कि कोर्स करेक्शन सरकार करेगी, ठीक है। बट यू नो कि चाइना में जो पावर है रियल में दैट इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बट हुआ क्या कि 2008 में जब हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली अक्रॉस द वर्ल्ड, China rather chose the strategy of investing in infrastructure that included railways, highways and the energy and construction sectors, ठीक है। चाइना ने ड्यूरिंग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस चाइना पे इतना असर नहीं हुआ था एंड चाइना देयरफॉर चोज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड रादर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो इट हैड स्वेप्ट द कोर प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कंजम्पशन, बट कहीं ना कहीं इस चक्कर में चाइना ने जो है कोर जो प्रॉब्लम्स थी चाइनीज इकोनॉमी की उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया एंड और स्वेप्ट अवे इन under the this infrastructure investment. So core problems क्या थी? Consumption, lack of consumption means demand, regional inequality and lack of social security under the carpet in order to sustain double digit growth rate, ठीक है। तो ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं व्हाट स्वेप्ट अवे होगी। हुआ क्या अल्टीमेटली? वाई इट डिड वॉज सिंपल, चाइना ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज द डोमेस्टिक लेजिटिमेसी ऑफ द लीडरशिप इन चाइना हैज डिपेंडेंट ऑन क्रिएटिंग प्रोस्पैरिटी एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिटीजन्स। किसी भी कंट्री के लिए जो लीडरशिप होती है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो यही चाहेगी ना कि लोगों की वेलफेयर की जाए, प्रोस्पैरिटी लाई जाए, सो दैट कि हम यहाँ पे बने रहें कुर्सी पे, ठीक है। तो इसी थिंकिंग के साथ चाइनीज के देन जो रूलिंग क्लास थी उसने भी किया। However, by the time Xi Jinping came to power, तो Xi Jinping 2012 में आते हैं, प्रेसिडेंट बने फर्स्ट टाइम 2012 में, ठीक है, आज भी हैं, जब तक हैं तब तक रह भी सकते हैं। So however, by the time Xi Jinping came to power, the steroids had run their course and the win-off period was worse off. कि कहीं ना कहीं जो भी ये सारी चीजें चाइनीज देन गवर्नमेंट ने की, चाइनीज गवर्नमेंट ने, वो सब कुछ हमें विन ऑफ होता हुआ नजर आने लगा, सब कुछ उसका इम्पैक्ट जो था वो वर्स ऑफ नजर आने लगा, ठीक है, अच्छे की जगह बुरा होना स्टार्ट हो गया। चाइनीज फाइनेंशियल मार्केट सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट सिंस लोन्स टू बिजनेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसकी सरकार से नजदीकियां होगी रूलिंग पार्टी से चाइना की, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी को लोन्स डिसवर्स होंगे। और द फेमस चाइनीज टर्म इसके लिए यूज होती है, दैट इज Guangzai. Guangzai means not Zai but Xi. So Guangxi, ठीक है, Guangxi, Xi Jinping, Xi. So the nodal network based on factions, friendships and relationships. ठीक है, कि अगर चाइनीज की जो गवर्निंग पार्टी है, एक ही तो पार्टी है चाइना में, तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है सीपीसी, उसी को कहीं ना कहीं उससे जिसकी नजदीकियां थी, जिन भी बिजनेसमैन की या इंडस्ट्रियलिस्ट की, उनको ये सारे लोन्स डिस्पर्स किए गए। तो नाउ अ न्यू नॉर्मल की बात करते हैं अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर शी जिनपिंग, ठीक है। तो शी जिनपिंग जी जब आए तो इन्होंने भी कुछ मेजर्स लिए, जैसा कि हर न्यू सरकार करती है, न्यू लीडर करता है। सो Mr. Xi says that China is the world's second largest economy. बिल्कुल ठीक बात है। He also says, and he's right in saying that China is the world's largest developing country as well. ठीक है।
तो हुआ क्या कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 2017 में जो कांग्रेस हुई, दैट इज एनुअल सेशन, उसमें शी जिनपिंग द देन प्रेसिडेंट, मैंने कहा कि 12 में ये प्रेसिडेंट बन गए थे, 12 से 17 तक फर्स्ट टर्म थी इनकी, ठीक है, एंड अभी इनकी 17 से 22 में खत्म हुई एंड फिर अगेन इनकी समवॉट थर्ड टर्म स्टार्ट हो चुकी। So Mr. Xi Jinping announced that from here on, the party would focus on the quality of life issues as part of its growth strategy. ठीक है, सो यहाँ पे फोकस जो था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल. So within this announcement, there was a recognition that people's expectations of the state had changed, but there was also an acceptance that the era of growth driven by exports, infrastructure spending and big ticket investment was over. ठीक है, तो यहाँ से दोनों था. फर्स्ट इसमें कि कहीं ना कहीं जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द स्टेट दैट हैज चेंज्ड एक्चुअली, ठीक है, एंड सेकंड कि जो पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, एरा ऑफ हाई ग्रोथ जो देखने को मिला चाइना में, लेड बाय एक्सपोर्ट्स बूम, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड बिग टिकट इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट्स, कहीं ना कहीं वो भी अब खत्म हुई होती नजर आई कि उनका भी अब टाइम खत्म हो गया है. चाइना टर्म दिस एन एरा ऑफ न्यू नॉर्मल where the country had to overcome the 2.5 decade long habit of enjoying more than 10% of growth. ठीक है, तो आज जहां पे चाइना खड़ा है, अगर वहां हमें, आई मीन नॉट आई एम सेइंग कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात, बट पॉजिटिव साइड ऑफ दिस चाइनीज इकोनॉमी कि चाइना ने, यू कैन सी कि 10% की ग्रोथ की है ऑलमोस्ट 2.5 decade, मीन्स 25 years. फाइन, स्पेशली द dawn of the century has been remarkable for China. ठीक है, तो देयरफॉर हमें भी, इंडिया को भी यहाँ से एटलीस्ट जिस स्टेज पे हम खड़े हैं आज, हमें भी अगर इस लेवल पे पहुँचना है, चाइना से आगे निकलना है, तो समवॉट हमें 10% के लेवल से ग्रोथ, रियल जीडीपी की ग्रोथ 10% की, 8 से 10% की, कोर्स इस रेंज में हमें करनी होगी फॉर द नेक्स्ट 2 decades मिनिमम. ठीक है, द हायर ग्रोथ है ट्रांसलेटेड इनटू मोर जॉब्स एंड ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम. ठीक बात है. Now, with lower than usual rates, new jobs were hard to come by. China continues to add a significant number of the graduates. क्यों? क्योंकि population में आज भी, थोड़े टाइम पहले तक लीडर था चाइना, अब सेकंड लीडर है. तो ऑफ कोर्स somewhat जो ग्रेजुएट्स हैं वो तो ऐड हो रहे हैं ना हर साल. इंडिया में ही देख लो. फाइन. So therefore, Chinese economy now, because of slowdown and all, been unable to provide the employment to these graduates. ठीक है, सो यही इन्हीं रीजंस की वजह से गवर्नमेंट इज नाउ एडवाइजिंग स्टूडेंट्स टू डिले देयर ग्रेजुएशन एंड टू डू सम एक्स्ट्रा कोर्सेज. ठीक है, so during the first term of Mr. Xi Jinping 2012 to 17, exports growth rates had cooled dramatically, a hint that China's labor costs were rising due to wage increase and social security investment. ठीक है, तो जो मिडिल इनकम ट्रैप की बात की गई, वहां पे एक तो पैरामीटर होता है इनकम. ठीक है, कि जो लेटर से जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ना कहीं एक रेंज में आकर रुक गई है. ठीक है, वो नहीं बढ़ रही. ऊपर से लेटर से जीडीपी प्लस एक और रीजन है कि जैसे एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स चाइना ने बहुत ज्यादा, मतलब लार्ज स्केल पे शेयर है एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना के, एंड काफी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के रूप में चाइना ने प्राप्त किए बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोर्ट्स. But remember, higher exports and that too at the cheaper rates, चाइना इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? इसके पीछे रीजन ये है बिकॉज ऑफ ह्यूज लेबर मार्केट. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, एंड दैट टू एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एट अ लो वेजेस. ठीक है, लोअर वेजेस. इसीलिए चाइना इतने सस्ते प्रोडक्ट्स बना पाया एंड सस्ती रेट्स में वर्ल्ड में बेच पाया. तो वर्ल्ड में डिमांड किस प्रोडक्ट की होती है? जो कॉम्पिटिटिव हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सस्ती हो बाकी कंट्रीज के मुकाबले एंड अच्छी भी हो. तो चाइनीज चीजें देखने में तो वैसे अच्छी होती है. ठीक है, चाहे वो लंबी चले ना चले, इतनी सोचता कौन है. तो एनी हाउ, तो ये रीजंस हैं जो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो चाइनीज की लेबर कॉस्ट है, नाउ दे आर राइजिंग ड्यू टू वेज इंक्रीज एंड सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ Xi Jinping. So this was the consequence of Foxconn suicides issue. Now ये क्या हुआ था? So somewhat around 2010 Foxconn suicide case कि Foxconn, Taiwan, this great
आईटी कंपनी। सो उसमें क्या हुआ, फॉक्सकॉन की एक ब्रांच थी चाइना में, तो चाइनीज ब्रांच में क्या हुआ कि लोगों ने सुसाइड करना स्टार्ट कर लिया बिकॉज ऑफ लो वेजेस एंड ऑल। ठीक है, तो इस वजह से लेबर कॉस्ट जो थी राइज होने लगी, तो वेजेस ऑफ कोर्स जो रियल वेजेस थे वो लोगों को कम मिलने लगे, तो इस वजह से विंडो के थ्रू अराउंड 14 to 15 वर्कर्स जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था इस फॉक्सकॉन कंपनी में। दैट्स व्हाई इट बिकेम द फेमस एज नोन एज फॉक्सकॉन सुसाइड इशू, which was seen as a political embarrassment and a social change in the Chinese economy. On the other hand, investments and easy credit availability have meant that sectors such as housing, energy, and construction have got into the bad habit of overproducing far beyond the immediate projected demand. ठीक है, तो इजी अवेलेबिलिटी, या हम ये भी कहें कि जो प्रॉक्सिमिटी थी इस पार्टी के साथ लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट के, बिजनेसमैन के, उनको इजी लोन मिलने स्टार्ट हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें बबल्स देखने को मिले, लाइक हाउसिंग बबल्स, एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होनी स्टार्ट होगी, जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा। मींस ओवर प्रोडक्शन हुई तो आज के टाइम में क्या है कि सम वॉट कैपेसिटी जो है वो, या जो स्टॉक ऑफ दिस गुड्स है वो आज भी लेटेस्ट से, या उस टाइम पे कहीं ना कहीं ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो ज्यादा थी जितनी डिमांड थी उससे। ठीक है, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस of slowdown. As a consequence, these sectors have been stuck with inventory without any demand. So inventory that is stock actually बहुत ज़्यादा पाइल अप होती गई over time, जबकि डिमांड तो थी नहीं या कम हो गई। So this has happened despite the early success of the supply side reforms. Supply side reforms basically focusing on production improvement, which shut down many underperforming companies and regulated the commodities markets. ये सब तब हुआ जब सप्लाई साइड रिफॉर्म्स लिए गए चाइनीज गवर्नमेंट की साइड से, एंड दैट टू वर सक्सेसफुल एक्चुअली, बट ओवर द टाइम ये हमें मैलिडी देखने को मिला एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल सच थिंग्स। ठीक है, फाइनली पॉलिटिकल चॉइस। सो नो अदर कंट्री हैज एज मच पॉलिटिकल इकोनॉमी एज चाइना डज। बिल्कुल ठीक बात है, चाइनीज सिंगल पार्टी सिस्टम है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। So China's ability to overcome its economic challenges today also has to be a political choice. ठीक है, मिस्टर शी जिनपिंग ने 2020 में कहा कि नाउ डिसऑर्डरली एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल की जरूरत है। इसीलिए आप जैक मा एक हैं जिनकी जैक मा, ही वाज द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस चाइना। तो अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और जिनकी एंट ग्रुप आईपीओ इसकी आनी थी। ठीक है, सो उसको भी विड्रॉ करा लिया गया। क्यों? क्योंकि ही सेड कि नाउ द टाइम इज फॉर डिसऑर्डरली एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल, नॉट द ऑर्डरली एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद having made the promise of allowing the market play a greater role in the allocation of resources during the third plenum of 18th Central Committee in 2013, Mr. Xi has rolled back many of the promises made then. तो 2013 में मिस्टर शी जिनपिंग ने ये कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल नाउ ग्रेटर रोल देंगे इकोनॉमी में, बट सम वॉट ही रोल्ड बैक हिज प्रोमिसेस और वेंट बैक ऑन हिज प्रोमिसेस मेड। इसी वजह से आप देखते हो कि जैक मा अब इतने आपको नहीं दिखते हैं। ठीक है, या मेनी ऑफ द जो बिग इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन थे चाइनीज के, वो कहीं ना कहीं वो समवॉट अब कम नजर आते हैं, या जो बड़े बड़ी कंपनीज थी चाइना की उसको ब्रेक कर दिया गया। So the Chinese who save more than 50% of their income did not like that their money was going to be locked in longer because of speculation by few others, leading to few protests. तो कुछ प्रोटेस्ट भी देखने को मिले, क्योंकि चाइना में ये क्या है कि जो 50% ज़्यादा सेव करते हैं, ऑफ कोर्स they won't be liking, even you won't be liking as an individual to invest or put money somewhere where it would be locked for a longer time. ठीक है, उसके बाद चाइना हैज इनिशिएटेड सेवरल सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू काउंटर दिस टेंडेंसी ऑफ सेविंग अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, बट प्रोग्रेस हैज बीन रियली स्लो। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो रही है उसको चैनलाइज किया जाए उस मनी को टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी फंड्स। ठीक है, इसके लिए पॉलिसी सच एज कॉमन प्रोस्पेरिटी लाई गई, दैट इज एम्ड एट शेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ द प्रोग्रेस बेटर, एंड ड्यूअल सर्कुलेशन। ड्यूअल सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज एम्ड एट इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन and
तो दो पॉलिसीज मेजर याद रखना, कॉमन प्रोस्पेरिटी एंड ड्यूअल सर्कुलेशन। डोमेस्टिक इकोनॉमी को ठीक करना प्लस एक्सटर्नली जो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स है उसको करेक्ट ठीक करना। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट एंड कटिंग डाउन इंटर प्रोविंशियल रेड टेप। ये जो भी प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे चाइना में रेड टेपिज्म है, ठीक है, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, उसको कम किया जाए, कट डाउन किया जाए। तो दिस हैव नॉट सक्सीडेड टू द लेवल द लीडरशिप वुड हैव लाइक्ड, ये कह रहे हो। तो उसके बाद देयर इज अ परसेप्शन दैट इज चाइना सीरियस स्लो डाउन बिगन only in 2015 but was held in control by government spending on projects such as urbanization। ठीक है, कि चाइनीज इकोनॉमी है कहीं ना कहीं 2015 से स्लो डाउन मोड में चली गई, बट इसको बनाए रखा किस तरह से, इतना हमें देखने को नहीं मिला स्लो डाउन उस स्केल से, बिकॉज जो गवर्नमेंट थी, जो चाइनीज सरकार है, उसने कहीं ना कहीं स्पेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड करती रही, स्पेशली बेस्ड ऑन अर्बनाइजेशन। The trade war between United States and China and policies such as de-risking and China plus one also accelerated the process of slowdown. So finally, China's zero COVID policy, क्या जब तक केसेस जीरो नहीं हो जाते तब तक इकोनॉमी को नहीं खोला, या बाहर के कहीं ना कहीं फ्लाइट्स पे भी कैंसिल कर दिए थे, काफी कुछ किया चाइना ने, may be considered as the last straw as far as the economy is concerned. So these are all the major issues or factors which has resulted in slowing down the Chinese economy. Okay? Now recent data from the second quarter of the year suggests that people and companies have become even more cash conscious and are holding on to their cash, कि अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, rather कैश रख रहे हैं अपने पास। जैसे कोविड-19 एक्सपीरियंस की बात करें, फूड सप्लाईज रैन आउट इवन इन द अर्बन एरियाज इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड फॉर इन्वेस्टर्स देयर इज अ फियर ऑफ एन इवन बिगर स्लम्प, thus making them wait for new bottom out levels। तो चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो ऑफ कोर्स एक रैशनल जो इन्वेस्टर होगा वो कहीं ना कहीं इस फियर में कि कहीं चाइनीज की जो इकोनॉमी है और स्लम्प ना करे, या बिगर स्लम्प की एक्सपेक्टेशन में कहीं ना कहीं अपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी तो ऑफ कोर्स जो साइकिल, जो प्रोस्पेरिटी की साइकिल है, जो बूम साइकिल है इकोनॉमी में, नहीं होगी चाइनीज इकोनॉमी में स्पेशली। तो एक अनदर इशू ये है on state enterprises. The state-owned enterprises (SOEs) have been another problem for the political leadership. Their assured contracts and political networks mean that they get away by political bargain and without changing their methods of operation. So SOEs, that is state-owned enterprises. अब इसमें क्या होता है, जो खास हैं सरकार के, जिनकी पार्टी से बनती हैं, या लेटस से जो भी लीडर्स हैं उनके क्लोज हैं, तो उनको अवार्ड कर दिया जाता है प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पॉलिटिकल नेटवर्क जो है उन, ये भी एक रीजंस है कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी की आज सिचुएशन हो रखी है उसके लिए। क्लोजनेस बिटवीन बिजनेसमैन एंड द पॉलिटिशियंस समवॉट slowing down this Chinese economy as well. I mean the reasons behind this. So they also provide social security to several hundred thousands working and retired workers, which means that touching them is a politically sensitive issue. तो ठीक बात है, ठीक है, कि अगर कोई फ्रेंड ही है उसके खिलाफ अगर आप एक्शन लोगे, दोज somewhat involved in the social this state led enterprises, बिकॉज बहुत लोगों की डिपेंडेंसी है इन एंटरप्राइजेस पे, सो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना भी कई बारी सिटीजन्स के परसेप्शन में वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एवरग्रांडे क्राइसिस। एवरग्रांडे रियल एस्टेट टाइकून ऑफ चाइना एक्सपोर्ट चाइना's हाउसिंग बबल। ठीक है, so it was also a symptom of misregulation and past dependency, which may be considered as symptomatic of the ills that affect the Chinese economy in general। ठीक है, तो हाल फिलहाल में थोड़ा टाइम पहले ही एवरग्रांडे क्राइसिस देखने को हमें मिले, जहाँ पे रियल एस्टेट बूम जो थी, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बड़े सारे लोन्स दिए गए, हाउसिंग बबल्स मींस रियल एस्टेट के प्राइसेस जो थे इन्फ्लेट करके दिखाए गए, फिर चाइनीज बैंक्स ने काफ़ी हैंडसम काफ़ी लोन दिए, एंड नाउ द टाइम इज की दिस समवॉट दिस कंपनी इज अनेबल टू रीपे और हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है फंस गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी दिस कुड बी अनदर रीजन रियल एस्टेट साइड से कि अनदर फैक्टर विच इज स्लोइंग डाउन द चाइनीज इकोनॉमी। So these are the different factors across the different sectors, across the sectors. So that middle income trap has been another long-term concern, as well as China's desire to climb up
the value chain, that is not just making things in China but also designing them in China. ठीक है, बट मिडिल इनकम में यही होता है कि लोअर जो लो वेजेस, आपकी कंपेटिटिवनेस थी, जो एडवांटेजेस थी लो लेबर कॉस्ट पे, वो आपकी ओवर द टाइम खत्म होती जा रही है, प्लस जो आप डिजाइन या इमिटेशन कर रहे थे फॉरेन टेक्नोलॉजीज की, वो भी अब आपकी खत्म होती जा रही है, क्योंकि इमिटेट कर रहे थे, डिजाइन नहीं कर रहे थे. देयर इज अ डिफरेंस इन द टू, बट दिस सीम्स टू बी अ डिस्टेंट ड्रीम. Even the Chinese economy growing at an estimated rate of 5% would mean adding more value when compared to India's projected growth rate of 6.1% for 2023. Given the size difference, ठीक है, सो सही ठीक बात है. अगर चाइनीज की इकोनॉमी स्लो डाउन मोड में अगर 5% ग्रो करती है, एंड इंडियन इकोनॉमी बीइंग द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेशन इन द वर्ल्ड अगर 6% से ग्रो करती है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है. फॉर इंडिया इट मे मीन अ कूलिंग ऑफ of the prices of crude oil and other commodities such as cement and steel, for which China have been a gigantic market. China का काफी अच्छा शेयर है इनमें, especially this cement and steel. Whether economic instability would change China's perception of its rise and its risk appetite on the border is another important issue to watch. तो बिल्कुल ठीक बात है. अगर चाइनीज की क्या है कि एग्रेशन जो देखोगे आप बॉर्डर एरियाज में, तो कहीं ना कहीं है कि इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि चाइना के जो लीडरशिप है, जो प्रेसिडेंट हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पे सिंस इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कुछ चैलेंजेस फेस करने को, मतलब सिटीजन्स के बीच में एक नेगेटिव परसेप्शन बनता हुआ दिख सकता है. इसलिए वो नेशनलिज्म के सेंस में या एग्रेशन के थ्रू कहीं ना कहीं ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, आई एम द स्ट्रॉन्ग लीडर. ठीक है, कि एक्सटर्नली तो अच्छा कर ही रहे हैं ना. तो दिस कुड बी द पॉलिटिकल strategies, but anyhow these are the different factors which is somewhat slow downing the Chinese economy. Next, some miscellaneous facts. To ensure supply of medicine food in Manipur, directed the Supreme Court. राजनाथ सिंह जो हमने परसों बात की थी कि जाने वाले थे 2-day विजिट टू श्रीलंका, दैट हैज बीन कैंसल्ड नाउ. ठीक है, आईसर के न्यू हेड बने हैं गोवर्धन दास जी. आईसर इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल साइंसेस. दिस इज फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईसर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल. एनपीएस withdrawal option set to be eased, says by Pension Fund Regulatory Development Authority of India, PFRDA. It is planning to bring in 2 vital changes to expand retirement options for new pension system. ठीक है, तो थोड़े टाइम पहले नेशनल पेमेंट सिस्टम एंड ओल्ड पेंशन सिस्टम के वर्सेस इन दोनों के बीच में डिबेट भी चल रही थी. काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जो ओल्ड पेंशन सिस्टम पे शिफ्ट हो रही हैं, बट दैट इज़ नॉट फिजिकली सस्टेनेबल. ठीक है, बट नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, रेट्स और बढ़ाई जा सकती है. मीन्स पेंशन की रेट जो है वो बढ़ाई जा सकती है. That's it. Okay. This is important. Of course, there are 3-4 things here that is important on this particular page. So 7 years on, mission to clean the Ganga remains a work in progress. Remember, national mission for to clean Ganga, actually NMCG, started first of all or announced in the year 2014. After that, in the last 7 years, this progress has been not that, somewhat, of course, on different perspective, देखने का नजरिया अपना अलग-अलग है. So there are certain, of course, improvement we have noticed that front as well, but of course the work in, you can say, still in progress or bit slow compared to. So treatment plants जो लगाए गए हैं, they are treating just 20% of sewage swimming into the river so far. You can see that in the 7 years since the government unveiled its ambitious 20,000 crore national mission for clean Ganga NMCG, it has installed in treatment plants capable of treating just 20% of the sewage estimated to be generated in the 5 major states that lie along this river. And these 5 major states that lie along this river is, तो एक्सपेक्टेशन ये है, जो 5 मेजर स्टेट्स हैं उनकी पहले बात कर लें. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल.
अभी 20% की ट्रीटमेंट हो रही है सीवेज ट्रीटमेंट। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये परसेंटेज जो है 20 से 33 होगी बाय 2024 एंड ये 60% तक होगी ट्रीटमेंट बाय द ईयर 2026। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नमामि गंगे मिशन, इस नाम से भी जानते हैं, इज टू इंश्योर दैट नो अनट्रीटेड सीवेज फ्लोज इनटू द रिवर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एनएमसीजी के जो मिशन डायरेक्टर हैं, याद रखना डायरेक्टर जनरल जो है जी अशोक कुमार। तो समवॉट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो है पिकिंग अप पेस स्लोली बट ऑफ कोर्स ग्रेजुअली, slow and steady. So project to set up STPs and sewerage networks are at the heart of the Namami Gange mission and account for about 80% of the overall project outlay. जितनी भी इस पे खर्चा किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, 80% जो फोकस है वो कहाँ पे, STPs दैट इज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड सीवरेज नेटवर्क्स पे। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी हाईएस्ट नंबर ऑफ जो STPs प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड में चल रहे हैं 36। उत्तराखंड इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स दैट हैव बीन सेट अप और अपग्रेडेड इन द केस ऑफ ओल्डर प्लांट्स फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड देन बंगाल। ठीक है, what else is important, remember our national aquatic animal that is dolphin. So of course this is another a positive sign because dolphin की जो population में बढ़ती हुई नजर आ रही है, dolphins की अगर population बढ़ती नजर आ रही है, it shows that somewhat the quality of water is somewhat improving. ठीक है, so एक जो साइन ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी अलोंग द गंगा है, दैट वाज द राइज इन डॉल्फिन पॉपुलेशन फ्रॉम 2000 टू अबाउट 4000। ठीक है, एंड नाउ also seeing the presence of dolphins in new stretches of the river as well as its tributaries. Fine, and जो fishermen है, they are also reporting the increased presence of Indian carp. Carp is again a fish species that only thrives in clean water. ठीक है, only thrives in clean water, Indian carp. So this is what showing. So this is of course a nature's verdict on river improvement. कि अगर वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तभी डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें अब इंडियन कार्प भी देखने को मिल रहे हैं। सो समवॉट दिस इज यू कैन से दिस इज नेचर्स वर्डिक्ट ऑन रिवर वाटर और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज सेइंग। Now NMC is now working to develop a water quality index on the lines of the air quality index to be able to better communicate about river water quality. So NMCG is now is in this working actually to develop a water quality index on the lines of air quality index. So we'll be keeping tab on this. Okay. Okay. Children from void marriages entitled to parent share in property. Remember, this article is very important in the sense that here will be somewhat you see the mention of Mitakshara law. Mitakshara law is basically the Hindu school of law actually. कल की हमने आर्टिकल में जो फैजान मुस्तफ़ा साहब ने लिखा था उसमें हमने 4 स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ देखे थे उसमें। इसी तरह से जो हिंदू लॉज हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू दिस मैरिज एक्ट, सो related to all this succession inheritance we have मिताक्षरा लॉ। ठीक है, मिताक्षरा लॉ है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट इस सेंस में है क्योंकि 2 साल पहले, ठीक है, नॉट इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स बट बिफोर दैट प्रोबब्ली इन 2022 prelims UPSC actually asked 2 questions somewhat revolving around 2 or 1 question especially related to मिताक्षरा लॉ। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ये कहा कि जो वर्ड मैरिजेस होते हैं, ठीक है, वर्डेबल और वर्ड मैरिजेस, उस वो भी जो दे आर एंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन, जो उस मैरिजेस के ऑफ कोर्स जो भी हैं, ठीक है, उस मैरिज के थ्रू हुए हैं, वो भी दे आर एंटाइटल्ड टू पेरेंट शेयर इन प्रॉपर्टी, स्पेशली अंडर हिंदू इनहेरिटेंस एंड राइट टू प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट एक्चुअली। दिस हैज बीन सेड बाय सुप्रीम कोर्ट। So now
A child born of void or voidable marriage can inherit their parents' share in joint Hindu family property governed by Mitaksha law. So Mitaksha law ये कहता है कि जो भी child है that is to be born of course एक लीगल हीर और यू कैन से ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, फाइन, जो कि इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी. A three-judge bench headed by, of course, Chief Justice clarified that such a child would not be entitled to rights in or to the property of any other person in the family. कि सिर्फ अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट होगी, ना कि और भी लोग जो है फैमिली में उनके बीच में, ऐसा नहीं होता. तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ और बिफोर लेट अस से द डेथ ऑफ फादर, दिस इन हिज विल ही असाइंस दिस प्रॉपर्टी टू हिज चाइल्ड, लेट अस से, ठीक है. एंड लेटस से, और या दूसरी चीज ये होती है कोपार्सनरी. कोपार्सनरी मींस नेक्स्ट 3 जनरेशन की बात की जाती है. या लेटस से फादर के ब्रदर थे, ठीक है, तो ब्रदर थे तो एक टर्म आती है, दिस इज मिताक्षा लॉ. द अनदर इज दया भागा लॉ. दया भागा लॉ. So 2 types of Hindu schools of law we talk about, and this right to succession and inheritance of property rights actually related to. तो दया भागा लॉ ये कहता है कि जो भी लेटस से कि जो फादर थे वो बिना विल के ही सपोज उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर पहले उन्होंने ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम में अगर बच्चे को दे रखा है, अपने चाइल्ड को प्रॉपर्टी दे रखी है, तो दैट्स फाइन. अदरवाइज जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है विद हिज ब्रदर्स लेटस से, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली की अगर हम बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, सो वहां पे उन ब्रदर्स में है जो, तो उन ब्रदर्स के साथ जो भी शेयर है वो इनकी शेयर देखी जाएगी, ठीक है. सपोज 100% प्रॉपर्टी तो 25% ही होती है ना अगर 4 ब्रदर्स हैं, तो इस 25% का हकदार जो है वो चाइल्ड होगा, ना कि इनकी. सिर्फ इनकी जो शेयर होगी उस शेयर में से एक चाइल्ड है या 4 चाइल्ड है, तो लेट अस से 4 बच्चे हैं, तो उनको फिर 25% को 4 में डिवाइड किया जाएगा, ना कि 100% को, ठीक है. दिस इज सेड बाय दया भागा. सो मिताक्षरा लॉ इज बाय ब्लड एक्चुअली, कि जो भी चाइल्ड है अगर नेचुरल हीर है, ठीक है, फादर का, तो उसको वो इनहेरिट करेगा इस प्रॉपर्टी को. एंड दया भागा में क्या होता है कि पहले भाइयों से, ठीक है, फादर को जो शेयर बना और फादर की शेयर फर्दर बच्चों में डिवाइड होगी, ठीक है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो वॉइडेबल मैरिज क्या है? वॉइडेबल मैरिज इज वन दैट इज मेड इनवैलिड बाय द हस्बैंड और वाइफ थ्रू अ डिक्री. अ वॉइड मैरिज इज इनवैलिड एट इट्स वेरी इंसेप्शन. Mitaksha law of succession governing Hindu undivided families applies to the whole of India except West Bengal and Assam. तो वेस्ट बंगाल एंड असम में दया भागा लॉ ज़्यादा पॉपुलर है एंड उस वही मेजरली चलता है, ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा लॉ. सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है दैट मिताक्षरा लॉ इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, ठीक है. सो दिस इज हाउ एक्चुअली यूपीएससी फ्रेम्स स्टेटमेंट्स. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, एंड यू नेवर नो कि फ्यूचर में भी आ सकता है, ठीक है. सो दैट्स इट अबाउट दिस. ठीक है, इसमें बाकी पार्टीशन की बात की है, को पार्सनरी की बात की है, ठीक है, सक्सेशन एक्ट की बात की गई है. फिर एक बारी हाँ, जो लेटेस्ट है दैट इज अमेंडमेंट लाई गई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में इन 2005. एंड इसमें क्या किया गया कि द शेयर ऑफ डिजीज पर्सन इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ कैन बी डिवॉल्व टू हिज हीर्स बाय टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन. भाइयों से पहले उसका जो शेयर था वो निकाला जाए, वो मतलब अलग किया जाए, उसके बाद जो वो शेयर है फादर की वो फर्दर बच्चों में डिवाइड किया जाए जो भी हीर्स हैं उनके बीच, ठीक है. तो प्रायर टू द अमेंडमेंट द डेवोल्यूशन वाज ओनली थ्रू सर्वाइवरशिप, कि अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो. बिसाइड्स द अमेंडमेंट गिव इक्वल राइट्स ऑफ सक्सेशन टू वुमेन एज वेल एज मेन. तो यहाँ पे राइट जो है वो इक्वली गिवन है मेन वुमेन एंड मेन दोनों को, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, अमेंडमेंट से पहले सिर्फ सर्वाइवरशिप के टाइम पे देखा जाता था, बट नाउ इवन डिजीज अगर पेरेंट है तो उस केस में भी स्पेशली फादर, उसके बाद भी बच्चे जो हीर है, लीगल हीर बनता है, वो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी फादर की, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू अष्टाध्यायी. अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, दैट इज अ ग्रामर, एक्चुअली संस्कृत ग्रामर बुक, ठीक है. So from Magna Carta to
अष्टाध्यायी आर्टिफैक्ट्स टू ग्रेस G20 कॉरिडोर। सो यहाँ पे G20 कल्चरल मिनिस्ट्री ने कल्चरल कॉरिडोर बनाया है एंड G20 डिजिटल म्यूजियम। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? इट्स द यूनाइटेड किंगडम्स फेमस चार्टर ऑफ राइट्स एक्चुअली, 15th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बेलवेडरे अपोलो फ्रॉम इटली। सो डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट जो भी फेमस चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, 18th सेंचुरी की Faholidad jar from China would be among the objects of cultural significance on display at the special culture corridor which would be set up at the venue of G20 summit in the national capital next week, प्रगति मैदान में एक्चुअली। तो इंडिया के साइड से जो है दैट इज पाणिनीज अष्टाध्यायी, एक्चुअली इट्स अ ग्रामर बुक, संस्कृत। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर न्यूज, दैट इज एनसीईआरटी को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइड से। एनसीईआरटी गिवन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी टैग सेट बाय धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ऑन बिकमिंग अ रिसर्च यूनिवर्सिटी विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एजुकेशन लैंडस्केप। दिस इज व्हाट सेड बाय हिम, and this is deemed to be university status is on the lines of Indian Institute of Science. ठीक है, IASC बेंगलुरु। This was the 63rd foundation day of the NCERT, the apex decision making body for school education. ठीक है, so ये कुछ miscellaneous facts हैं जो याद रखना आपने। And another thing is Mr. Pradhan said that the Jadui Pitara, a play-based learning teaching material tailored for children in the age group of 3 to 8 years developed by the NCERT would benefit 10 crore children entering the play-based learning system in Anganwadis or pre-primary section of schools leading up to class 2. So NCERT ने एक let us say learning teaching material तैयार की है, call it Jadui Pitara। ठीक है, especially it will be used at the level of Anganwadi centers। ठीक है, because 80% of the brain development occurs by the age of 8 years. ठीक है, we need to ensure that content is made and adapted to the mother tongue, otherwise it will be little use। ठीक है, so 80% की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो 8 साल की उम्र तक हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को स्टार्टिंग से इस तरह की लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करें। ठीक है, दैट टू इन द मदर टंग। के बाद अगर हम जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन के फ्रंट पे देखें तो अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है। 3 मंथ की लो कलेक्शन हुई है, ऑफ 3 मंथ्स लो, दैट इज 1.59 लाख करोड़। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ वाज स्लोअर इन अगस्त, lower than forecast. Factory activities rise to near 3-year high, that's a good news. PMI manufacturing sector की बात करें, purchasing manager index in manufacturing had rose to 58.6%, that is showing expansion. Any figure 50 plus, 50 से beyond है तो of course this is expansion, showing expansionary phase. PMI क्या होता है ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, Nepal rejects China's map, asks neighbors to respect boundaries set by its parliament. That's great. ठीक है, चाइना ने भी अब रिजेक्ट किया चाइनीज की मैप, नेपाल की सरकार ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया चाइनीज की जो न्यू मैप है। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। नाउ द फ्रेश क्लैश हैज बीन रिपोर्टेड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। यह ऐसे नहीं चल रहा है, पिछले 3-4 सालों से देखने को मिल रहे हैं। Finally, the sports page. So we have discussed whatever relevant things were there from the today's newspaper, but before we stop here, let us quickly have a look at today's questions based on whatever we have discussed. Okay, let us look at it. So here are 2 questions, both for prelims only. ठीक है, because as mains के लिए खास नहीं था। So first is, consider the following statement. The main objective of the Namami Gange mission is to ensure that no untreated sewage flows into the river. The 5 major states covered under the mission is this, and a sign of improvement in water quality along the Ganga was the rise in dolphin population from this month to this. ठीक है, second question is, the Supreme Court held that a child born
of a void or voidable marriage can inherit their parents' share in a joint Hindu family property governed by the Mitaksha law. And second is the Mitaksha law of succession governing Hindu undivided families applies to the whole of India. So these are the correct options you need to mark. Okay, so that's your homework. I'll be discussing these two questions initially on Monday. So that's it from my side. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising the things, and of course, stay tuned for Monday Hindu analysis. Thank you.